Hello student, in this lecture we are going to study physical property of group 16, 17 and 18 element. सबसे पहले हम पढ़ेंगे periodic properties of group 16 element. Oxygen is gas while other elements are solid. यहाँ पे नोट करना है oxygen is gaseous molecule while other elements are solid at room temperature. ये हो गई हमारी first property. Second property, oxygen and sulfur are non-metals. Oxygen and sulfur are non-metals. Selenium, tellurium are metallites and polonium is metal. तो मैं जो 5 एलिमेंट है उसमें से पहले फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, सेकंड 2 आर metalloids and third one that is polonium is metal which is radioactive having half-life period 13.8 days. Next property of group 16 element is melting and boiling point increase with increasing the atomic number. When we go down the group in the group 16, melting and boiling point increases. Last property of group 16 element is all the elements of group 16 exhibit allotropy. Allotropes हमें पता है a single substance can exist in 2 or more form. जैसे कि हमें पता है कार्बन exist in 3 form, fullerene, diamond and graphite. हमने 10th में भी पढ़ा है, इसको हम स्लाइड की मदद से पढ़ते हैं. फर्स्ट 2 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन सल्फर. सेलेनियम एंड टेलोरियम आर मेटालाइट्स एंड पोलोनियम इज मेटल. यहाँ पे हम देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज ऑक्सीजन विच इज डायटोमिक मॉलिक्यूल and ozone is triatomic molecule. So these are the 2 allotropes of oxygen. Next example is sulfur. Sulfur having the many allotropes, but out of them 3 example is given, that is rhombic sulfur, monoclinic sulfur and plastic sulfur. इनको हम अल्फा बीटा और गैमा सल्फर भी कह सकते हैं. These are the allotrope of sulfur. Selenium and tellurium having allotropes. The selenium and tellurium found in amorphous state as well as in crystalline state. Selenium in amorphous state, selenium in crystalline state, tellurium in amorphous form and tellurium in crystalline form. ये हमें समझना है यहाँ पे. Atomicity, one more property is there, atomicity. Oxygen is diatomic molecule while other elements of group 16 are polyatomic. जैसे कि सल्फर है, सल्फर का जो क्राउन शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर 8 सल्फर मॉलिक्यूल है. दिस इज द न्यू प्रॉपर्टी दैट इज एटोमिसिटी. अब आते हैं हम ग्रुप 17 एलिमेंट की तरफ. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17. उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन. फ्लोरीन, क्लोरीन आर गैसेस. Bromine is liquid at room temperature and iodine is solid at room temperature. Fluorine yellow in color, chlorine greenish yellow in color, bromine red in color and iodine violet in color. हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर. इसमें से जो पहले 2 गैसेस एटम है, गैसेस मॉलिक्यूल है सॉरी, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, these are the gases and react with water. ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. ये पानी के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, स्लाइटली रिएक्ट करते हैं. ये हमें समझना है. नीचे एक प्रॉपर्टी दी है यहाँ पे. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हैलोजेंस विच आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म. These are soluble in organic solvent, soluble in various organic solvent such as chloroform, carbon disulfide CH2, carbon tetrachloride CCl4, hydrocarbon which gives colored solution. ये हमें समझना है. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज, मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसका यहाँ पे सीक्वेंस दिया है. सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है क्लोरीन, क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए. उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद आयोडीन, आयोडीन. ये जो इसके बीच में जो बॉन्ड है ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी. ये सीक्वेंस हमें ध्यान में रखना है. इस पीपीटी की मदद से हमें समझ सकते हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसियस मॉलिक्यूल्स. Bromine is liquid, red in color.
Iodine is violet in color which is solid at room temperature. यहाँ पे कलर देख सकते हैं हम, फ्लोरीन पेल येलो कलर, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर, ब्रोमीन रेड कलर और आयोडीन वॉयलेट कलर। इस डायग्राम से हमें पता चलता है क्लोरीन एंड फ्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज atomic radius increases down the group. Now the properties of group 18 element, which are noble gases. Noble gases are monoatomic, means helium, neon, argon, krypton and radon. These are the gases but monoatomic gases. Like जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं Cl2 diatomic gases, Br2 diatomic gases, F2 diatomic gases. Why the group 18 elements are monoatomic gases? Because their outermost shell is completely filled, their octet is completed. ये हमें समझना है। They are sparingly soluble in water, water में slightly soluble है। Noble gases have very low melting and boiling points. Helium has the lowest boiling point of any known substances. ये हमें नोट करना है यहाँ पे। हेलियम का बॉइलिंग पॉइंट है 4.2 केल्विन। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट टॉपिक टू स्टडी दैट इज एनोमलस बिहेवियर। व्हाट इज द एनोमलस बिहेवियर? एबनॉर्मल बिहेवियर, डिफरेंट दैन अदर। जैसे कि 16 ग्रुप एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑक्सीजन, विच हैविंग डिफरेंट बिहेवियर दैन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो हम पहले देखेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इन ग्रुप 16। तो एनोमलस बिहेवियर में देखना है हमें एटोमिसिटी। ऑक्सीजन इज डायटोमिक while other elements are polyatomic. That is the property atomicity. Then another anomalous behavior, that is magnetic property. Oxygen is paramagnetic while other elements are diamagnetic. Paramagnetic हमें पता है, ऑक्सीजन के p ब्लॉक में हमें पता होना चाहिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जिस एटम के पास या एलिमेंट के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक नेचर। तो हमें यहाँ पे समझना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, -1 एंड +2। तो हम ऐसा कह सकते हैं द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज रेंजिंग फ्रॉम -2 to +2, but in case of other elements their oxygen state ranging from -2 to +6. Means other elements show higher positive oxygen state up to the +6. Nature of hydride of the oxygen H2, यहाँ में देखना है ऑक्सीजन का हाइड्राइड है वाटर विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बट द हाइड्राइड ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 16 आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो ये पॉइंट हमें समझना है। हाइड्राइड में ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और अदर मेंबर का जो हाइड्राइड्स है वो गैसेस है। फॉर एग्जांपल हम एक देख सकते हैं H2S विच इज gas found in gaseous state at room temperature, but water which is found in liquid state at room temperature. Next property, that is, and next anomalous behavior of oxygen is common covalency of oxygen is 2. ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? तो ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, H, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड फॉर्म किए, या फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 2 है। लेकिन बाकी एलिमेंट में वैसा नहीं है, बट अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप 16 द कोवैलेंसी कैन एक्सीड 4। तो 4 बॉन्ड भी वो फॉर्म कर सकते हैं। कोवैलेंसी मतलब द एलिमेंट विच कैन फॉर्म नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे समझना है ऑक्सीजन इज
हैविंग स्मॉल एटॉमिक साइज, उसकी साइज बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है दैट इज़ 3.5 एंड अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये हमें ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, ये हमें समझना है। नाउ द एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। Fluorine is the first member of the group 17, different in properties from the other member of the group. The anomalous behavior of fluorine is due to following reason: small atomic size, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टडी करने में, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, absence of d ऑर्बिटल एंड लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब एफ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो। दिस इज द एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, एनामलस प्रॉपर्टी दी है फ्लोरीन की, वो भी हम पढ़ लेते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आर द हायर फॉर फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड ट्रेंड शो बाय द अदर हैलोजेंस। तो ये सारी प्रॉपर्टी फ्लोरीन के लिए हाई है। तो जैसे हमने पढ़ा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज हाई देन द अदर एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन इज हाई देन द अदर एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडाई, melting and boiling point, and electron gain enthalpies are quite lower than the expected. एक abnormal behavior है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, ये भी ध्यान में रखना है। हैलोजन की रिएक्शन में ज़्यादातर क्लोरीन ब्रोमीन की और आयोडीन की देखते हैं, फ्लोरीन की रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और हजार्डस है, इसलिए हम ये रिएक्शन नहीं लेते। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर है फ्लोरीन का। इट फॉर्म ओनली ऑक्सो एसिड means HOF. Other halogens can form different types of oxo acid. Other halogens form number of oxo acids. For example, यहाँ पे देखते हैं HOCl, HOCl2। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन देखा है।